A very warm good afternoon and Jai Hind to all. I know you all are doing well and you all are happy and happy plus healthy, right? So, dear students, it's my humble request that you must stay home, stay safe, because until and unless, again I'll also say the same as Scholar Tune says कि बहुत जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें. तो stay home, stay safe, because the worst time is going on because of this pandemic, and your health is our first priority. Okay, dear students, so for this I would request you all to join your hands and close your eyes, and let's have a short prayer. So, and repeat after me. Thank you, God, for everything. Thank you, God, for protecting us and keep blessings on us. Thank you. Okay, so once again, welcome back to the virtual classroom of economics, class 10. And today we are going to continue our lesson number 1, that is the development. Right? So, whatever we have done in our last class, we have a very quick recap of that. This is the question paper pattern in the syllabus of economics. This is the index which we are going through. Introduction we have done, development promises, different goals we have done, income and other goals, national development, how to compare different countries or states, and today our topic is income and the other criteria. So today we are going to discuss about this topic. What are the other criteria which I ऑलवेज टॉक अबाउट कि इनकम के साथ साथ और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो वो और भी एट्रीब्यूट्स क्या हैं, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दोज एट्रीब्यूट्स, अबाउट दोज फैक्टर्स. So let's move on. Again, development is an idea for about the country and the individual. Different people are having different goals. Income and the other goals, we always look at the mix of goals. For example, हमने यहाँ पे जॉब का लिया था. Whenever we are supposed to do a job, हम इनकम के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं जो हम एक बार को मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट we have to look after those factors also. जैसे आप इनकम देखोगे, but if respect is not there, what if आपकी सिक्योरिटी नहीं है, what if you don't have freedom. सो ये सारी चीज़ें हम लुक आफ्टर करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी ऑलवेज kept in mind is that is the mix of goals. Always remember mix of goals. Mix of goals, right? Okay. Let's move further. नेशनल डेवलपमेंट, अगेन द पॉइंट इज कि हम किसके बारे में देखें, किसके बारे में हम बात करें, हम किसका आइडिया जो है वो चूज़ करें, कैसे चूज़ करें, और हमें वो आइडिया चूज़ करना है जिसके मैक्सिमम बेनिफिट्स हो. तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अपना आइडिया चूज़ करना होता है. एंड देन हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स. हाउ वी विल कंपेयर विद द हेल्प ऑफ द एवरेज income, right? We will do it with the help of the average income. Okay, so for development, what is the formula of the average income? That is the total income and total population. And what are the limitations we have faced? किसी भी country की income total नहीं, मतलब एक जैसी नहीं होती, और किसी भी country की पॉपुलेशन एक जैसी नहीं होती. हमने इन द सेंस कि जो ये हमारी इकोनॉमिस्ट होते हैं उन लोगों ने एक क्राइटेरिया सेट करा है. द कंट्रीज दोज हु आर हैविंग अ पर कैपिटा इनकम ऑफ $12236 वो रिच कंट्रीज में आती हैं, एंड द कंट्रीज हु आर हैविंग अ पर कैपिटा इनकम ऑफ $1005 वो हमारी लो इनकम कंट्रीज में आती है. ये तो रिच एंड लो का हो गया. व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया क्या है? इंडिया कम्स इन द लो मिडल इनकम, बिकॉज इसकी US डॉलर यानी कि पर कैपिटा इनकम है 1840. कितनी है? 1840. फाइन, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. सो लेट्स स्टार्ट आर द करंट टॉपिक, दैट इज इनकम एंड द अदर क्राइटेरिया. सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं. मैंने आपको पहले थोड़ा सा जूम करके ये दिखाऊं. हेयर वी हैव टेकन अ डेटा. हमने एक डेटा लिया है, ठीक है. ये डेटा आपकी बुक पे अवेलेबल है. इंडिविजुअल नोशन, अदर फैक्टर्स एंड क्राइटेरिया. इंडिविजुअल्स के अलग अलग आइडियाज, अदर फैक्टर्स क्या है. 3 states are there, Haryana, Kerala and Bihar, and we are going to measure these states on the basis of 3 things. That is the infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio, right?
infant mortality rate, literacy rate and the net attendance ratio. ओके, सो अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मैं आपको जूम क्लास में बहुत डीपली समझा चुकी हूँ, इससे हम यहाँ पे सिर्फ एक डेफिनेशन टाइप लेंगे और वो डेफिनेशन क्या है हमारी? Definition is available in your book also, so you can go through your book. क्या definition दे रखी है इसमें हमें? IMR or infant mortality rate indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1,000 live children born in particular year. यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर हमने अब 2020 में हम देखेंगे एक रेशो देखेंगे 1000 बच्चों का जो 1 साल से कम थे, लेस देन 1, कितने, व्हाट इज द डेथ रेशो, क्या डेथ रेशो रहा जो मर गए, जो डाई हो गए बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर. अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम कैलकुलेट जो करेंगे वी विल कैलकुलेट इट लाइक दिस. हम यहाँ पर अपॉन में तो 1000 लेंगे एंड व्हाट इज द, ये हमारा होएगा कि ये क्या है, ये हम कैलकुलेट करके निकालेंगे. दिस इज नोन एज द IMR. ठीक है. अब देन व्हाट इज द लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट क्या होता है? मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड द अबव एज ग्रुप. 7 एंड द अबव एज ग्रुप, 7 प्लस, यानी कि जो 7 साल से ऊपर के बच्चे हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, कितने लिटरेट है. आप कहोगे कि मैम बच्चे जो हैं वो तो 3 साल का प्ले स्कूल जाता है, तो हमने उन्हें कैलकुलेट क्यों नहीं करा? उसका भी रीज़न बताती हूँ. सी द कोरोना पैंडेमिक इज गोइंग ऑन. अब इसी के अकॉर्डिंग मेरा बेबी जो है, खुद का बेटा 3 साल का है, उसके अकॉर्डिंग ये प्ले स्कूल में होना चाहिए, बट ही इज़ नॉट गोइंग टू द प्ले स्कूल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन. सही नहीं है. अब आई डोंट नो कि वो कब तक ये सिचुएशन रहेंगी, क्या कब तक क्राइसिस रहेंगी. ठीक है. सो वो अगले साल स्कूल जाता है, नेक्स्ट ईयर स्कूल जाता है, आई डोंट नो अबाउट दैट. तो हम एक 6 साल तक के बच्चों को एक ग्रेजुअली ले लेते हैं कि ठीक है उसे जो आता है दैट्स इनफ. बट आफ्टर 7 ईयर इट इज़ अ टाइम ऑफ अ कंसर्न. अगर हमारे बच्चे को कुछ नहीं आता, वी हैव टू गो थ्रू कि कितने बच्चे, मतलब 7 साल के ऊपर के बच्चे पढ़े लिखे हैं. ठीक है. पढ़े लिखे इन द सेंस पढ़ रहे हैं और पढ़े लिखे हैं. ओके, द नेक्स्ट वी हैव इज द नेट अटेंडेंस रेशो. अभी नेट अटेंडेंस रेशो का, इसे थोड़ा सा हम लिटरेसी रेट से कंपेयर करेंगे, मतलब समझेंगे. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 and years attending school as a percentage of total number of children in the same age group. 14 से 15 साल तक के जितने बच्चे हैं, ठीक है, इनमें से कितने स्कूल जाते हैं? फाइन. आप कहोगे कि मैम ऑलमोस्ट सभी स्कूल जाता है. बेटा स्कूल जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, कितना उसे वो कंटिन्यू करते हैं. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. व्हेन यू आर हैविंग योर ऑफलाइन क्लासेस होती थी, तो इफ़ यू आर एब्सेंट ऑन द पर्टिकुलर डे, आप किसी भी पर्टिकुलर डे पे एब्सेंट हो, योर पेरेंट्स विल गेट द नोटिफिकेशन थ्रू ERP. ERP के थ्रू आपको मैसेज पहुंच जाता था कि योर वार्ड इज प्रेजेंट टुडे और योर वार्ड इज एब्सेंट टुडे, राइट. बट अब आप ऑनलाइन हो, ऑल्दो वी आर कीपिंग अ रिकॉर्ड कौन कौन ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, बट ऑफलाइन में यू आर गेटिंग अ मैसेज थ्रू द ERP, राइट. फर्स्ट सेकेंड पीरियड तक आपके पास वो मैसेज पहुंच जाता था. तो इससे ये पता चलता था कि आप स्कूल जो आए हो, आपने कब तक कंटिन्यू वो स्कूल करा है, 2 बजे तक करा है या नहीं करा है, या मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ, जैसे जब आपकी TC जाती है तो हम लिखते हैं कि भाई अप टू से क्लास 7, अप टू क्लास 8 या अप टू क्लास 12, तो वो एक सर्टिफिकेट है कि हाँ आपने 12th क्लास तक स्कूल पढ़ा है. तो यही होता है आपका 14 से 15 साल तक के बच्चों का, कि एनरोल कितने हुए हैं एंड उसे कंप्लीट कितने बच्चों ने करा है. दिस इज नोन एज दी नेट अटेंडेंस रेशो. ठीक है. अब आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हुए. ये IMR क्या है, आपका लिटरेसी रेट क्या है, या नेट अटेंडेंस रेशो क्या है. अब इसे पढ़ते हैं. अब एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, हरियाणा, केरला एंड बिहार, हमने 3 स्टेट लिए हैं. वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये 2017 का दिखा रहा है, 30 है, केरला का 10 है, बिहार का 35 है. यानी कि सबसे ज़्यादा बिहार में बच्चे मरते हैं, केरला में सबसे कम एंड हरियाणा में 30 है. मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत कम है, बट हाँ एज कंपेरिजन टू द अदर स्टेट कम है. लिटरेसी रेट 2011 का है, ये हमारा 2011 का
यानी कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिटरेट पॉपुलेशन है 82, उससे भी ज़्यादा है हमारी केरला में, और सबसे कम है बिहार में, वी ऑल नो दिस। और नेट अटेंडेंस रेशो ये 13-14 का है, हरियाणा में 61, केरला में 83 एंड बिहार में 43। यानी कि सबसे कम बिहार में तीनों चीज़ों में, मतलब एक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर केरला एंड फिर हरियाणा। यानी कि अगर हम कंपेयर करें तीनों स्टेट्स को तो केरला में आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, और नेट अटेंडेंस रेशो भी सबसे ज़्यादा है। यानी कि केरला को अगर हम स्टेट वाइज बोले तो यस, केरला इज द डेवलप्ड स्टेट। क्या है? डेवलप्ड स्टेट। देखो कंट्रीज तो डेवलप्ड या डेवलपिंग होती ही हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेट्स में भी कंपैरिजन होता है, जिसमें से केरला आपकी एक डेवलप्ड स्टेट आती है और मानी जाती है। गॉट इट? सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि दैट व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स, व्हाट आर द वेरियस एट्रीब्यूट्स विच वी गो थ्रू, विच वी लुक फॉर अदर देन इनकम। हम इनकम के अलावा क्या क्या गोल्स को हम देखते हैं, राइट? सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दैट इज द बॉडी मास इंडेक्स। नाउ व्हाट इज बॉडी मास इंडेक्स? अब ये क्या है? हैव यू एवर हर्ड, जो थोड़े से जिम गोइंग पर्सन हो या थोड़े से हेल्थ फ्रीक हो, उन्होंने सुना हो कि BMI होता है, BMI होता है बॉडी का BMI होता है, दैट इज ऑलरेडी बॉडी मास इंडेक्स। ये क्या है या क्या होता है? सी, मैंने आपको अगेन क्लास 9th, हम वापस चलते हैं अपना क्लास 9th लेसन नंबर 2 पीपल एज रिसोर्सेज। मैंने आपको बोला था पीपल जो है हमारे वो रिसोर्सेज है, वो हमारी एसेट्स है। अब वो एसेट्स किस फॉर्म में होती है? इफ द पर्सन इज हेल्दी एंड इफ द पर्सन इज एजुकेटेड। तो अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो एक पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हेल्दी है या नहीं है? उसे हम कैसे पता लगाते हैं? तो टू फाइंड आउट वेदर द पर्सन इज हेल्दी और नॉट, वी हैव द BMI, दैट इज द बॉडी मास इंडेक्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम इज देयर एनी एज ग्रुप जिसमें हम बॉडी मास इंडेक्स को कंसिडर करते हैं या हम पता करते हैं कि हाँ हमें एज ग्रुप में लेना है? यस, द एज ग्रुप इज 14 to 69। द रीज़न इज 14 साल के नीचे बच्चा जो होता है दैट इज अ ग्रोइंग चाइल्ड, यानी कि वो एक बढ़ता बच्चा होता है, तो हम उसका BMI कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। बिकॉज इफ अ चाइल्ड इज इन इट्स ग्रोइंग एज, तो इट मे बी पॉसिबल कि वो वेट गेन करे, इट मे बी पॉसिबल वो वेट लूज करे, ठीक है। एंड आफ्टर 69 ऑलमोस्ट अ बॉडी जो एक रिस्पॉन्स करना होती है वो अपने आप कम कर देती है। उसमें भी तो एक सिचुएशन होती है वेदर द पर्सन इज ऑन मेडिकेशन, तो वो वेट लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, एंड ऑलरेडी द पर्सन इज ऑन मेडिकेशन, तो वो हेल्दी पर्सन नहीं है, ठीक है। सो हमारे ये 2 पॉइंट हो गए, राइट। सो अब ये BMI क्या है या हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो फॉर्मूला है वो तो ये है, वेट हमारा kg अपॉन हाइट, दैट राइट। तो वेट अपॉन हाइट हमारा हो गया है। सो फॉर्मूला इट इज़ क्लियर टू यू, वेट अपॉन हाइट कि हमारा कितना है। तो हमने ऐसे यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, हमारा आ रहा है 25। अब देयर इज़ अ टेबल जो शो करता है कि वो पर्सन क्या है, अंडर नरिश्ड है, ओवरवेट है या नरिश्ड है। सो सी, इफ़ अ पर्सन इज हैविंग अ BMI लेस देन 18, अगर उसका लेस देन 18 है तो इट मीन्स वो अंडर नरिश्ड है, ठीक है। एंड इफ द BMI इज मोर देन 25 तो वो ओवरवेट है, और 18 to 25 है तो वो नरिश्ड है, राइट। सो मतलब हम किसी को अगर बोलते हैं, हैव यू एवर सीन कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी हेल्दी होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, राइट। सो हम उनका BMI कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि दैट दे आर अंडर नरिश्ड और ओवरवेट। एंड देयर आर सम पर्सन जो बहुत पतले सुकड़े से होता है और कहते हैं कि भाई इसमें तो बहुत जान होगी और उसमें कुछ नहीं होता। Okay, so I hope today's topic is very much clear to you all, and there is no problem. Still, if you have any doubt in any of the topic, you can contact me for the same. Thank you so much, and yes, a humble request to you all: stay home, stay safe.
नो नीड टू कम आउटसाइड until and unless it is not required. आप अपना ध्यान रखिए और अपने घर वालों का ध्यान रखिए. That is the biggest thing you can do for us and your for family. Thank you so much. Have a great day.